आपको पता ही है कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हम आते जाते देखते रहते हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स काम कर रहे हैं, हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रही है, बट उनके सेफ्टी मेजर्स पर कभी किसी ने ध्यान दिया है? वहाँ पे इतनी सारी लेबर काम कर रही है, बट उनके सेफ्टी मेजर्स, क्या उन्होंने हेलमेट ढंग से पहना है नहीं पहना है, ये कभी किसी ने ध्यान दिया है? नहीं। बट टुडे इन दिस एपिसोड एक कंपनी आई है जो AI एल्गोरिथम्स के थ्रू हमें सेफ्टी मेजर्स बताएगी एंड जो हमें डायरेक्ट पुश नोटिफिकेशंस के थ्रू बता पाएगी कि किसने क्या सेफ्टी मेजर ब्रीच किया है। इजंट इट इंटरेस्टिंग टू नो कि क्या AI से ये भी पॉसिबल है? लेट्स एक्सप्लोर इन दिस पॉडकास्ट। सो सडनली व्हाट हैपेंस इज हम देखते हैं कि गड़बड़ी मच गया है एंड बाद में पता चलेगा। हम तो साइट ऑफिस में बैठे हैं, राइट, एंड बड़ा साइट था, काफी बड़ी साइट थी। हम लोग साइट ऑफिस में बैठे हैं एंड हमको पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट होके दो वर्कर और बिल्डर का खुद का एक स्टाफ मेंबर हैव बीन इंजर्ड। कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए पैसा क्यों देगा? क्योंकि ये डेटा जो जाता है और जो एक्शंस लिए जाते हैं वो रिएक्टिव होते हैं, ना कि प्रोएक्टिव। ओके, आई विल एक्सप्लेन। My name is Rishikesh. I am the co-founder and CEO of Predictech. As far as the company is concerned, my role is in strategy, business development, as well as overall operations. okay, Right. I have a degree in aeronautical engineering, backed with 13 plus years of experience in hardcore B2B tech business development. okay. And I have worked across multinational companies in various industries like automotive, construction, infrastructure, chemicals, heavy engineering, etc. So that is my background in short. Perfect. ब्रतन मुखर्जी। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट और प्रोडक्ट को पूरा entirely I'll be aiding the product and product strategy. And apart from this, I also like doing the market research and like the entire tech related part has been managed by me. And apart from this, I have 12 plus years of experience in various products. Started my career as an algo developer in various international capital markets, Okay. and from there I have like the journey is like used to be a product owner in an retail ERP, and currently like last association is with Big Four, so where I'm also working with an investment bank as a tech consultant. Okay. So that's all about my journey. So it's near about 12 plus years into this tech product development. All about. Perfect. Perfect. So guys, without wasting any time, predict tech. So एक नाम से समझ आ रहा है कि हम कुछ टेक से रिलेटेड काम कर रहे हैं. So अगर मैं एक लेमन लैंग्वेज में बोलूं, what exactly are we doing with predict tech? Okay, so that's a very good question. मैं नाम पे बाद में आऊंगा, पहले ये बताता हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ, right? So the story basically goes back about 2-3 years. Okay, and Bratin and I just really Bratin and I हम लोग मिले थे हमारे लास्ट कंपनी में, which was a company which had a construction project management product, a software. Okay. And उस कंपनी को हम दोनों ने मिलके, Bratin was on the tech side, I was on the business development side. We scaled the company almost 3.5x in 3 years. Okay, together. And we met with all the top builders across the country, etc. Coming back to the point, so this is, I would say, about just after COVID, end of 2021, right after the first lockdown, and we were at a site at a prominent location, one of the prominent builders, and we had gone there to discuss the project details and further steps of implementation of the product at that site of that product. So suddenly what happens is हम देखते हैं कि गड़बड़ी मच गया है एंड बाद में पता चलेगा। हम तो साइट ऑफिस में बैठे हैं, राइट, एंड बड़ा साइट था, काफी बड़ी साइट थी। हम लोग साइट ऑफिस में बैठे हैं एंड हमको पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है। और एक्सीडेंट होके दो वर्कर और बिल्डर का खुद का एक स्टाफ मेंबर हैव बीन इंजर्ड। ओके, तो ये साइट जो हमने देखी, व्हाट फॉलोड was basically Predictech, right? Because इसमें हमने क्या देखा ना, इसमें हमने सिमरन दो बहुत डिफरेंट साइड्स देखे। ओके, एक जो था वो साइड था
एक ह्यूमन लाइफ का रिस्क, बिल्कुल। वर्कर्स इंजोर हो गए हैं, उनका कौन टेक केयर करेगा, राइट? एंड द सेकंड साइड वाज द बिजनेस साइड, जहां पे बिजनेस इंपैक्ट होगा, अभी इनका रिप्लेसमेंट कौन लेके आएगा, प्रोजेक्ट ना टाइम डिले हो वेस्ट होगा। जाए। बिल्कुल। हाँ। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे परमिशन भी रुक जाता है। जे हम्म। एक एक्सीडेंट होने के बाद आपको जैसे ही आपकी ऑडिट होता है तो आपको जितना भी जैसे फायर ब्रिगेड्स, ये सब सारे अप्रूवल्स फिर से क्वेश्चन आ जाता है, आपकी ओके। प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। एग्जैक्टली। तो हमें फिर वो समझ में आ रहा था कि ये तो हो रहा है। एंड फिर हमने थोड़ा इधर उधर पूछा, देन पता चला दे हैव अ सेफ्टी टीम, दे हैव एवरीथिंग। जो एग्जिस्टिंग, जो उन लोगों का जो मतलब जो प्रोसेस था वो सब था। बट हम्म। कुछ फिर भी होता गया, लोग थोड़ा कैजुअल अप्रोच ले लेते हैं, लोग हेलमेट पहनना भूल जाते हैं, सेफ्टी जैकेट पहनना भूल जाते हैं। तो ये जो एक्सीडेंट होता है इंडिया में बहुत कॉमन है। तो ये एंड तो प्रॉब्लम है, लाइक, ये ज्यादा इंडिया में है या फिर अगर मैं ओवरऑल ग्लोबल बात करूं, ग्लोबल, क्योंकि मैं देखता हूँ हाँ, तो आई टेल यू, आई ये टेल यू। इश्यूज मिडिल ईस्ट, इंडिया और जैसा हमारा एशिया का इस पार्ट वाले जो हम्म। एरिया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है क्योंकि एक्चुअली अवेयरनेस सिमरन, बहुत कम है। मैं ना इस पे एक और चीज ऐड करना चाहता हूँ। ओके, चीज ये है, समझने वाली चीज ये है कि देखो, एक्सीडेंट होना, ओके, बिल्कुल। ये एक अकरेंस है जो होगा। ओके, बिल्कुल बट एब्सोल्युटली। उसके बाद जो हुआ ना, कि भाई उसको टाइमली एड नहीं मिलना, या फिर हमको, हमारे दिमाग में उस टाइम पे ये चल रहा था, हम दोनों के दिमाग में, कि भाई अगर इसकी, इस रिस्क की इंफॉर्मेशन हम्म। सही टाइम पे सही टाइम पे। आदमी के पास पहुंच जाती, हम्म। तो हम्म। बहुत कुछ अवॉइड हो सकता था, ठीक है। हम्म। राइट? सो जैसे there's a very famous sentence by Mr. Narayana Murthy, the founder of Infosys, हम्म। right? He has said very famously that in God we trust, everyone else needs to bring data to the table. तो एब्सोल्युटली। हमने हमने ये चीज देखी कि ये जो करेक्ट, जैसे ब्रतिन ने बोला, ये प्रोसेसेस है, लोग रखे हुए हैं, हायर्ड है, देख रहे हैं, बट फिर भी वो जो करेक्ट डेटा करेक्ट टाइम पे करेक्ट आदमी के पास पहुंचना, हम्म। ओके, दिस इज ये समथिंग एक विच इज सर्कल मिसिंग। होता है। हाँ, which this is something which is missing overall. We are not talking, हम्म। maybe इंडिया में ज्यादा है, यूएई में उससे थोड़ा कम है, वेस्टर्न कंट्रीज में उससे थोड़ा और कम है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल। बट वहां पे पूरे दिस सेफ्टी गियर्स प्रॉब्लम। मैंने देखा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर होगी वो पूरे सेफ्टी गियर्स के साथ होती है। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इंडिया में करेक्ट, ये करेक्ट। चीजें बहुत ही रेयर मैंने देखी है कि कोई, अगर कोई इंजीनियर लेवल पे एग्जीक्यूटिव है, उसी ने सेफ्टी गियर्स हम्म, पहने होंगे, बाकी जो लेबर क्लास है वो, उनके पास तो कोई सेफ्टी गियर्स नहीं होते। हम्म, और करेक्ट, अपार्ट फ्रॉम करेक्ट। दिस तो जो बट एक्सीडेंट। ऑडिट भी दिखाना पड़ता है कि सेफ्टी गियर्स पहन रहा है, तो हाँ, मतलब अदरवाइज आपको काम करने की परमिशन नहीं है। तो मैं इसी क्वेश्चन में ये इसी पे आ रहा था कि जैसे एक एक हो गया कि सेफ्टी गियर्स पहनने हैं, एक हो गया सेफ्टी गियर्स पहनने हैं, दूसरा हो गया हम्म, हमारा कि एक्सीडेंट्स। कितने केसेस ऐसे होंगे, अब आप इस इंडस्ट्री से आपको पता होगा कि जहां पे एक्सीडेंट्स हुए हैं, मेजरली माइनर है लेकिन वो छुप गए, तो उस केस में क्या? ओके, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा ना, जो एक्सीडेंट होना, छुपना, छुपाना, ओके, हम्म। ये सारी चीजें अभी ऑनेस्टली बोले तो जो रिपोर्ट्स बनते हैं, जो अथॉरिटीज को दिखाने पड़ते हैं, ओके, हम्म। उनके लिए शायद ये कुछ हद तक मैनेज किया भी जा सकता है। हम्म। बट अगेन कमिंग बैक टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, देखिए हमको पहले ये चीज समझनी है कि पूरा जो, अगर आप एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को देखोगे, हम्म। ओके, और ये हमने, वी आर सेइंग दिस बेसिस द फैक्ट, हमने जब ये प्रॉब्लम हमने देखा, जैसे मैंने बोला कि एक एक एम्पैथेटिक साइड, एक हम्म। पर्पस वाली साइड, और एक बिजनेस वाली साइड, राइट? तो हमारे दिमाग में ये आया कि इसमें यार टेक का एक रोल हो सकता है, ओके, बिल्कुल। टेक कैन प्ले अ बिग रोल। कैसे? हम्म। इसीलिए हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप दैट वी डिड वाज गोइंग बाय द स्टेटमेंट व्हिच आई गेव ऑफ मिस्टर नारायण मूर्ति, हम्म। राइट? We spoke to almost 200 plus builder company owners, ठीक है। and trust me, these guys, I include even the top builders in the country in this, ओके। okay. Unse we spoke to 200 plus people, owners, directors, and they said that हाँ, ये जो चीज है, डेटा ना पहुंचना, वायोलेशन का पता ना चलना, इसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होता है। सी वी एज अ कंपनी ब्लीड मनी, बिकॉज आप उनके बिजनेस को समझो,
a builder always has subsidiary companies, ancillary company, जो कि हर एक प्रोजेक्ट में अलग अलग कंपनी से वो करते अलग हैं। अलग ओके, तो एक एक प्रोजेक्ट का पैसा, अभी रेरा आ गया तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई। ओके, एक एक प्रोजेक्ट का पैसा उनका एस्क्रो अकाउंट में जा रहा है, उधर कोई प्ले नहीं है उनको पहले की तरह। तो अगर ऐसा कोई अनटूवर्ड अकरेंस होके डिलेज होते हैं तो दे ब्लीड मनी एज अ कंपनी, दैट प्रोजेक्ट ब्लीड्स मनी एज अ कंपनी, उस ओके, प्रोजेक्ट की पूरी बजट एलोकेशन हिल जाती है। अच्छा, ठीक है। हाँ ऐसा भी देखा है, मतलब प्रोजेक्ट 1 साल तक रुक गया है। मतलब देर आर फ्यू केसेस जहाँ पे प्रोजेक्ट 1 1.5 साल 2 साल के लिए रुक जाता है, होल्ड हो जाता है। और आजकल जो मतलब आप बिल्डर्स का डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल जो बिल्डर्स है वो अगर कोई पोजेशन देना होता है तो उनकी तो स्कीम्स ही ऐसी होती है कि अगर एक टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया तो जो बायर है उनको पर मंथ के हिसाब से 1% हाँ, वो जो जो भी अमाउंट है वो मिलेगा। वही रेरा का रूल है, दैट इज वो द रेरा ऑल रेरा अबाउट का लाइक। रूल है। तो तो एब्सोल्युटली। वो भी ये तो मेजर, एक लॉस ही हो गया ना उनके लिए भी, कि हाँ डिले की वजह हाँ से अगर हाँ, उनको अपने कस्टमर का ईएमआई का अमाउंट भरना पड़ रहा है, तो इसमें देखिए आप एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। जैसे मान के चलिए एक छोटा सा किसी ने घर लिया है एकदम एक टियर 2 सिटी में, ओके, ठीक है। 25-30 लाख का घर है, उसका पर मंथ का ईएमआई कैलकुलेशन के हिसाब से अबाउट 30,000 रुपीज पर मंथ। हाँ बिल्कुल। अभी अगर वो बिल्डर भर रहा है और ऐसे 10 लोग हैं, तो बिल्डर 3 लाख रुपया पर मंथ अपने जेब से भर रहा है ना, एंड दैट इज जब नॉट तक द ओनली एक्सपेंस दैट ही हैज एज अ कंपनी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, क्योंकि ये चीज एक हो जाती है, एक एथिकल फॉर्म में जाना हो तो ठीक है, मैं फिर वो कंसीडर करूंगा कि हमारी जो मार्केट रहेगी वो बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि आजकल हमने जैसे एक एग्जांपल देखा था मेरे ख्याल से 1 1.5 साल पहले, जो गुड़गांव में अपार्टमेंट्स थे 2 फ्लोर नीचे गिर गए थे। तो अगर बिल्डर्स करेक्ट। प्रोडक्ट ही वो यूज कर रहे हैं तो फिर ये चीज के लिए कोई एक्स्ट्रा कॉशियसनेस होने के लिए एथिकली तो मेरे ख्याल से नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, जब ये रूल्स है, जब उनको पता है कि ये चीजें नहीं करेगी, उनके कॉन्सिक्वेंसेस में उनको उनके जेब से पैसे निकलेंगे, तब जाकर ही, मैं सबकी बात नहीं कर रहा लेकिन हाँ मोस्टली तब जाकर ही वो फिर इस चीज के लिए अप्लाई करेंगे आगे। आपने आपने बिल्कुल सही बात बोली सिमरन, विच इज व्हाई इवन इफ यू लुक एट आवर टैम सैम एंड सॉम, द हम्म सैम दैट वी हैव मेंशन्ड हम्म is based on the 50,000 रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स जो अभी हमारे कंट्री में चल रहे हम्म, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसी कोई हैं। ओके, रेगुलेशंस नहीं अभी तक लगाई कि उनको, जैसे आपने बताया कि जो हाँ। भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स है वो कंपलसरी है, हम्म, लेकिन नहीं हम्म, कोई कोई उसको यूज नहीं कर रहा, तो हाँ। साइट विजिट होके कोई चालान हो जाए, तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ऐसा तो मेरे ख्याल में नहीं है, बट आई टेल यू नहीं, जो ऑडिटिंग रूल्स है। होता है, ओके। ऑडिटिंग होता है, बट वो ऑडिटिंग में लाइक, अब देखिए होता क्या है, वर्कर्स है आपके साइड में, काम हो रहा है, यू कैनॉट वेट लाइक, बहुत लोग कैजुअल अप्रोच से लेता है। हाँ। बहुत बार होता है जो वर्कर्स साइड पे काम करते हैं ना, दे वेर लाइक, वो लाइक रजिस्टर्ड लेबर नहीं होता, कहीं से भी लेके आता है, लाइक मोस्टली लाइक, मतलब वो हर 2 दिन में चेंज भी हो जाता है। हम्म तो आपको उसको ट्रैक करना आज के दिन में इट इज इम्पॉसिबल, कि वो आप कितने भी पेनल्टी लगा दो, कुछ भी कर लो आप। आपकी टीम को एग्जांपल, जो डेवलपर्स है उन्होंने आपका टीम का, खुद का टीम का पीए ट्रेनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट जो कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं उनको आप ट्रैक कर ही नहीं सकते। तो ओके। यही पे हमारा है कि हम पहले से ही आपको एक क्या बोलते हैं, मतलब हम पहले से ही आपको एक गार्ड दे के रखेंगे, सो दैट आपके साइड में अगर कोई भी बंदा बिना ये पीपी किट्स का काम कर रहे हैं, तो हम्म रियल टाइम में जो टीम है उनके पास मैसेज आएगा। ठीक है। दुनिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, इवन इंडिया से बाहर भी है, बट वो लोग क्या करते हैं, वो ही साइट का डेटा को रेंडर करके किसी को दिखाते हैं। तो अगर कोई नहीं देख रहा है तो कोई नहीं देख रहा है, वो तो साइड में ऐसे भी चल रहा है। हमारा कॉन्सेप्ट है, हम जैसे एग्जांपल, आप सेफ्टी ऑफिसर हो, ठीक है। आपके व्हाट्सएप में या आपकी, आप प्रोजेक्ट मैनेजर, आपकी व्हाट्सएप में हम पुश नोटिफिकेशन भेजेंगे कि आप भी देखो कि साइड में पीपल आर देयर जो हेलमेट और गियर नहीं है। तो ओके। जैसे आप बोले ना कि कोई है नहीं क्या, तो वो हम लेके आ रहे हैं, ओके। अब हम लेके आ रहे हैं। ठीक है। तो तो आपको वो, सिमरन यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। तो ब्रतिन ने टेक्निकल लैंग्वेज में समझाया, ओके, मैं बिजनेस लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ना, हम्म उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ओके, एक होता है पीएमएफ, विच इज द प्रोडक्ट मार्केट फिट। ओके, दूसरा होता है बीएमएफ, विच इज द बिजनेस मॉडल फिट। हम्म ओके, मैं दोनों की अभी बात करता हूं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ओके, प्रोडक्ट मार्केट फिट है
क्यों, उसका रीजन हमने आपको दे दिया। बिकॉज सेफ्टी का पूरा जो खेल है इट रिवॉल्व्स अराउंड टू थिंग्स, कैपा एंड आरसीए, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन एंड रूट कॉज एनालिसिस। ओके फॉर एग्जाम्पल अभी आज के दिन में टुडे देयर आर 50 occurrences of helmets not being worn at site. ओके That is the incident. Okay. Now the safety officer is supposed to do his cap RCA as to why were the helmets not worn. Okay. उसको बहुत सिंपल रीजन पता चले कि साइट पे 10 ही हेलमेट अवेलेबल थे, हेलमेट स्टॉक में नहीं थे साइट पे। ओके तो फिर उसका रूट कॉज एनालिसिस आ गया। ओके, इसके लिए वो कैपा कैसे सजेस्ट करेगा और हेलमेट्स ऑर्डर करो। दैट बिकम्स पार्ट ऑफ द करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। ओके, अब मैं बात सो दिस इज वेयर वी एस्टैब्लिश द प्रोडक्ट मार्केट फिट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बिजनेस मॉडल फिट कि भाई कोई भी कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए पैसा क्यों देगा। क्योंकि ये डेटा जो जाता है और जो एक्शंस लिए जाते हैं वो रिएक्टिव होते हैं ना कि प्रोएक्टिव। ओके आई विल एक्सप्लेन। फॉर एग्जाम्पल किसी बिल्डर कंपनी में मैं आपको दो यूज केस बताता हूं। हमने जैसे एक बिल्डर से बात किया था ईस्ट इंडिया में, जिसने बोला कि मैंने 2 लोग हायर किए हैं जिनका काम है वो खाली दिन भर साइट में घूमते हैं और फोटोज लेते हैं कि किन किन लोगों ने हेलमेट्स नहीं पहने या पीपी नहीं पहना। एंड जस्ट टू टेल यू, पीपी इज जस्ट पार्ट ऑफ द एमवीपी ऑफ सिक्योर साइट। वी आर गोइंग टू ऐड मेनी मोर लेयर्स, राइट? तो उसमें हम बाद में आएंगे प्रोडक्ट रोड मैप पे। सो राइट नाउ दिस इज द सिचुएशन। ओके, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। अब ये क्या करते हैं, वो डेटा वो जो फोटोज है ये लोग दे सेंड इट मैन्युअली ऑन व्हाट्सएप टू द बिलिंग इंजीनियर। बिलिंग इंजीनियर वापस से अपना मास्टर एक्सेल शीट खोल के देगा, अरे यार ये बंदे आज कौन सा कॉन्ट्रैक्टर साइट पे आया था, क्या था, और फिर उसके मंथली बिल में से वो डेबिट मारेगा। ओके, अगर कोई रूल होता है, हाँ ये रूल है। ओके, अगर हर एक कंपनी में एक सेफ्टी हेड होता है जिसका काम होता है साइट पे जाकर विजिट करना और सेफ्टी का ओवरव्यू करना। अब अगर कोई इंसिडेंट होता है तो जब वो सेफ्टी ऑफिसर उस साइट पे आएगा, मैं इंसिडेंट में एक्सीडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, मैं वायोलेशन की बात कर रहा हूं। ओके, जब वो साइट पे जाएगा, व्हाट्सएप हो चाहे जो भी हो, जब वो साइट पे जाएगा तभी वो उसके आरसी और कैपा के बारे में बात कर पाएगा, राइट? अगर हम सिक्योर साइट के थ्रू वो सारा डेटा उसके फोन में उसको दिखा सकते हैं और वो एक जगह पे बैठ के एक डिसीजन ले सकता है कि क्या करना है, तो इस चीज के लिए तो कोई भी कस्टमर पैसा देगा। बिकॉज उसका आप अगर मोटा मोटी ये मान के चलो, जो साइट हमारा जो प्राइस पॉइंट है, ओके, जो हम कस्टमर को चार्ज कर रहे हैं पर मंथ, ओके, इट इज आई विल गो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल एंड टेल यू, एक साइट सेफ्टी हेड का जो मंथली कन्वेंस का खर्चा होगा ना पेट्रोल का, जो बिल्डर कंपनी बेयर कर रही है, हम लोग उतना ही चार्ज कर रहे हैं। तो आप उसमें कैसे अर्न करोगे? हम स्केल पे अर्न करेंगे। हम ये बोलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसा, और ये मैं ये भी बताता हूं कि हम इतना अग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे क्यों जा पा रहे हैं। बिकॉज सिक्योर साइट यूज करने के लिए कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं करना है। साइट पे सीसीटीवी कभी भी लगते हैं, हम तो सीसीटीवी से फीड उठा रहे हैं। ओके, हम फीड स्टोर भी नहीं कर रहे। एक बार वायोलेशन मिल गया तो हमारा फीड हमने फ्लश आउट कर दिया। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंस, फिक्स कॉस्ट भी काफी कम हो गया। बहुत कम है, बहुत कम हो गया। ओके, एंड पॉइंट आपकी जो भी सीसीटीवी है आज के दिन में आपकी एग्जिस्टिंग साइट पे, हम उसी को यूज करने वाले हैं। कोई हम रिकमेंडेशन नहीं करेंगे कि ये यूज करो, ये कॉस्टली वाला यूज करो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ओके, पॉइंट नंबर 3, अभी इस केस में देखिए, अभी यहां पे हमारा एक्सरसाइज है एक बेंचमार्किंग करना, जो कि कस्टमर को भी चाहिए, राइट? यहां पे आई मेक अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो कोई भी टेक होता है ना, जैसे मैंने बिजनेस मॉडल फिट की बात की, कोई भी टेक हो, ओके, इफ इट इज गिविंग एन एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो वो उसमें बिजनेस मॉडल फिट है, वरना उसमें बिजनेस मॉडल फिट नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट फिट सिर्फ पीएमएफ आने से कुछ नहीं होता। ओके, सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। आज हम सब लोग स्विगी और जोमेटो यूज करते हैं। ओके, स्विगी और जोमेटो का बिजनेस मॉडल फिट क्या है? स्विगी और जोमेटो बिजनेस मॉडल फिट ये है
कि वो घर बैठे हुए कस्टमर को खाना डिलीवर कर रहे हैं, हम्म, राइट? तो वो जो बिल्कुल। पूरा एक्सपीरियंस है कि ट्रैफिक में जाओ, लाइन में खड़े रहो, फिर खाना लो, वहां पे 4 लोग से झगड़ा करो और आओ, दैट एक्सपीरियंस इज कट, काइंड ऑफ, हाँ बिल्कुल राइट? बिल्कुल। आप ऑब्जेक्टिव लेयर पे देखो, सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ सिक्योर साइट, वी आर cutting the whole horrifying experience of acting after the incidents have happened हम्म, and making them empowering people and stakeholders to take action before an incident occurs. हम्म, हम्म, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यार, हमारी कंपनी से प्रिडिक्टेक्स की वजह से, सबसे पहले तो अभी आपके अकॉर्डिंग, आपने मार्केट रिसर्च ऑलरेडी कर रखी होगी, कितने इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं इसका इंडिया में सिर्फ, और प्रिडिक्ट टेक की वजह से, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हम पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, बट यस, कितने, अगर हम 10 बंदों के साथ काम कर रहे हैं तो कितने परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट्स ये हैं कि हम उसको, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बंद हो जाएंगे, बट हाँ, हमें पहले से ही हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। ओके, तो इसका 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 आंसर मैं 2 पॉइंट्स में दूंगा। ओके, हम्म, कोई भी हैजार्ड जो होता है ना सेफ्टी के रिगार्डिंग, उसको डिटेक्ट उसका एक एक फ्लो होता है। तो हम्म, आपने डिटेक्ट किया, ओके, रिकॉर्ड किया, ठीक है, नोटिफाई किया एंड देन एक्शन लिया, राइट? तो ये प्रोसेस जो है, ये सब जो है ऑडिट रिपोर्टिंग हो या स्पेशल मैट्रिक्स हो, उसमें कैप्चर होता है। ओके, तो हैविंग सेड दैट to give you data right now, the fertility rate is about 20% in every 1000 workers. ओके, fertility rate की बात कर रहा हूं, fertility rate की बात कर रहा हूं। okay, whatever data that we have researched, that tells us that the use of tech can prevent accident occurrence by about 60 to 65% and avoid project delays due to these incidents by about 35 to 40%. ओके, ओके, ठीक है। सो आपके साथ साथ और भी कंपनीज होंगी जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गया या सेम सेट ऑफ ऑडियंस को टारगेट कर रही हैं। सो जस्ट टेल अस अबाउट योर कॉम्पिटिटर्स, कौन कौन सी कंपनीज है जिनके साथ हम I'll tell compete you कर that. रहे हैं? Yes, I'll tell you that. So, direct competition एक्सीडेंट में कोई है नहीं, क्योंकि काफी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है ये, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई कोई और कॉम्पिटिटर भी हो। काफी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है ये। नहीं, बट हैविंग सेड दैट, क्या मैं आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बढ़िया सवाल पूछा, मैं इसका जवाब देता हूं। ओके, इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है, ओके, फील्ड खाली है, वो सब हमारे लिए अच्छा है। ओके, हमारे कनेक्ट भी है इंडस्ट्री में, वो भी अच्छा है। बट द थिंग इज, सिमिलर टेक्नोलॉजी, अगर हम एक ब्रॉड लेवल पे बोलें तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन। ओके, जो सिक्योर साइट कर रहा है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कंप्यूटर विजन। ओके, तो सिमिलर टेक्नोलॉजी अलग यूज केस में डिप्लॉय किया जा चुका है। ओके, यहां पे अगर किसी को यहां पे उस सेम अप्रोच को यहां पे डिप्लॉय करना भी है तो उसमें टाइम लगेगा। रीजन बीइंग, जो अदर यूज केस में बात कर रहा हूं ना, वो बहुत मतलब ट्रिवियल यूज केस है कि भाई एटीएम में कोई मास्क पहन के जा रहा है, या सॉरी, एटीएम में कोई हेलमेट, कोई बिना मास्क के घूम रहा है, राइट? ये ऐसे टाइप के यूज केसेस हैं, रिटेल के यूज केसेस हैं। ओके, जो कि ये सारे मास्क और राइडर हेलमेट्स वगैरह, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये स्टैंडर्ड ओपन सोर्स लाइब्रेरीज के थ्रू आप आजकल डिटेक्ट कर सकते हो। ओके, हमने क्या किया, लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल। ओके, हमने क्या किया है, हमने, हाँ, हम ये मानते हैं किया है, बट व्हाट वी हैव डन इज, हमने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं मारा है, वी हैव रिफाइंड एंड ट्रेन्ड आवर मॉडल्स टू एन एक्सटेंट wherein वो अनकॉमन ऑब्जेक्ट लाइक अ कंस्ट्रक्शन हेलमेट, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल वर्कर व्हाइट कलर का हेलमेट पहन रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो येलो कलर का हेलमेट पहन रहा है, आवर मॉडल इज ट्रेन्ड टू डिटेक्ट बोथ। ठीक है, ठीक है। लॉट ऑफ ट्रेनिंग ये तो गॉन इनटू, there's a lot of training which has gone into developing these models, and frankly speaking, इसको कोई
आना भी चाहेगा तो इसको डेवलप करते करते टाइम लग जाएगा, बिकॉज हमको खुद को ये एआई डेवलप करने में 2 साल लग गए। ओके, बट एक तब दूसरा तक चीज हमारा है, हम्म वो भी हमारा मैं तब तक स्टिकीनेस, बताना चाहता हूँ। तब तक फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा स्टिकीनेस आ गया होगा प्रोडक्ट ऑलरेडी। ओके। हमारा जो रोड मैप है उसको कोई जाके ट्रेस भी नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर लाइक, मेरा और ऋषि दोनों का 4 years वी हैव स्पेंड इनटू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ओके। तो हमें पता है पीपी इन किट इज डेप्थ। नॉट द, हाँ, तो पीपी किट इज नॉट द करेक्ट, एंटायर करेक्ट। थिंग्स, पीपी किट इज जस्ट लाइक फर्स्ट स्टेप, हम हम्म सीढ़ी का पहले ही वो ले रहे हैं। हम्म कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इज नॉट पीपी किट, हम्म। इसका बहुत सारे लेयर्स होता है, और ओके। हमें वो पूरा पता है, वो हम लोगों का रोड मैप में है। एंड हम लोगों का कॉन्सेप्ट ही है, हम इस इंडस्ट्री का तो शेयर बनेंगे, और एक एक करके वंस हम इस इंडस्ट्री का शेयर बन गया तो बाकी सारे जितना भी है, तो कंस्ट्रक्शन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर में ट्रिलियंस खर्चा करने के लिए जा रहा है। हम्म। तो नेक्स्ट है, और इंफ्रास्ट्रक्चर में सेफ्टी इज अनदर प्रॉब्लम। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, तो हम है एक एक सेक्टर में मैच्योर्ड होंगे, फिर नेक्स्ट सेक्टर में जाएंगे। कंस्ट्रक्शन यस, का रोड मैप हमारे लिए पूरा ऑलरेडी क्लैरिटी है, और हमें पता है। तो कोई आके ये आरएनडी करने में 4 साल लग जाएगा, हाँ, हम तो ऑलरेडी आरएनडी कर चुके हैं। मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ठीक है, जैसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो एक एसेट टेक आने से अप्रोक्सीमेटली 60-65% एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे, ये तो डेटा अवेलेबल है। लेकिन हम आज कहाँ पर है? अगर मैं प्रिडिक्ट टेक की बात करूं तो हमने कहाँ तक होमवर्क कर रखा है? कोई नंबर्स हैं जो हम आज डिस्कस कर सकते हैं? किस टाइप के नंबर्स, इफ यू कैन नंबर्स एलाबोरेट हो इट। गए, या जैसे मार्केट रिसर्च, जैसे हमने आरएनडी की है तो हमने कहाँ कहाँ पे आरएनडी की है, मतलब कितना ओके, टाइम हो गया सो हमें ये सारी चीजें करते हुए? ओके, सो ये सारी चीजें करते हुए हमको ऑलमोस्ट अभी अगर मैं डे वन से बात करूं तो 1.5 से 2.25 साल हो गए। ठीक ओके, है। बाकी पूरा जो अभी तक जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी सिक्योर सेट एज वी स्पीक इज ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट। ओके। ओके, Secure अब ये Sight is अगर our one product. We वन have प्रोडक्ट, multiple product वी हैव pipeline वन मोर which is प्रोडक्ट। under R&D, and the second product is out of the box. तो उस ओके। पे हम लोग आएंगे। वो पहली बार इंडिया में, क्या मतलब, बहुत पूरा एशिया में इस लेयर का प्रोडक्ट आज तक नहीं बना, ओके। जिसका R&D चल रहा है। ठीक है। राइट, सो हैविंग सेड दैट, ये हमने किया, एंड यू नो टिल नाउ वी हैव बीन रनिंग दिस बाय आवरसेल्व्स। ये है टॉकिंग अबाउट नंबर्स। अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो आज के डेट में इमीडिएट सॉम है, हम्म। ऑब्टेनेबल ऑपरेशन, ऑब्टेनेबल मार्केट है, दैट ओनली स्टैंड्स एट अबाउट 300 crores। ओके। ओके, ओके। एंड आई थिंक टैम भी एक बार बता दो ऋषि, जो ओवरऑल है, या सैम आगे। जो है, आई ओवरऑल थिंक इट इज देखिए, 1500। ओवरऑल टैम की अगर मैं बात 15। करूं, करंटली द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन इंडिया इज वैल्यूड अबाउट 640 billion US dollars, growing at a CAGR of 6% till 2028, supposed to reach 1 trillion USD in the next 5 to 6 years. That ओके। is the thing, right? तो ओके। उस केस में हमारा जो सॉम बनता है, which is basically we calculated using our ticket size, which is about 25,000 rupees per month per project, multiplied by 50,000 RERA registered projects currently, because that is where we have the connects, right? So that comes to about 1,300 to 1,400 CR. उसका 20% projects are in Bangalore, Chennai, Kolkata and Coimbatore, जहां पे ओके। हम दोनों के कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। ठीक है। और अगर मैं रेवेन्यू की सो बात उसका करूं तो प्रिडिक्ट टेक हम कब से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं? अगले मैक्सिमम अपर लिमिट 6 से 7 महीने में रेवेन्यू जनरेशन चालू हो सकता है, और अगर मैं अपर लिमिट। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो हमारी कंपनी प्रॉफिट्स कब कब देख सकती है? We become EBITDA and PAT positive from second year of operations. ओके। ठीक है। परफेक्ट। एंड इन रिगार्ड्स टू जस्ट कंटिन्यूइंग द फाइनेंशियल थिंग्स, सो व्हाट एग्जैक्टली इज आवर आस्क अमाउंट? हम कितना आस्क इस टाइम देख रहे हैं, और हमारा यूटिलाइजेशन किस किस फॉर्म में होगा? ओके, सो आई थिंक अभी आज का भी थोड़ा सा बात चल रहा है, बट what we are looking at, it has somewhere around 2 CR ओके। at a dilution of about 7%,
6.8 6-7%, हम लोग 7% मैक्सिमम थ्रेशोल्ड रखे, उससे Okay. ज्यादा तो डायलूट नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन ये है, एंड द यूटिलाइजेशन इज फेयरली इक्वल। मेजर चंक, एक जो मेजर चंक है वो है फॉर टेक हायरिंग, बिकॉज वी विल नीड अ सीनियर AIML पर्सन, वी विल नीड HTML people, we will need a good cloud ops and DevOps person, उसमें होगा। we will be हमारे केस में परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज नॉट अ बिग एक्सपेंस, बिकॉज ये बिल्डर्स का एसोसिएशन होता है क्रेडाई का, तो उसके Okay. इवेंट्स होते हैं। तो कमिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस यहाँ पे इवेंट्स को स्पॉन्सर करके काफी ट्रैक्शन मिलता है, राइट। सो हमारी जो लास्ट कंपनी थी सिमिलर इसकी, तो हमने वो कंपनी में भी इवेंट्स के थ्रू बहुत स्केल किया था। सो इवेंट स्पॉन्सरशिप्स विल बी अ मेजर फॉर्म ऑफ मार्केटिंग, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन है। Okay. इंफ्रास्ट्रक्चर है And पर्सनल कनेक्ट भी है हम लोग का, तो ऑल द बिग डेवलपर्स लेट्स इन कोलकाता एंड बैंगलोर, कोयम्बतूर, आई थिंक मेरे को और ऋषि को ऑलरेडी दे नो अस पर्सनली। एंड हम लोग जब हमारा लास्ट प्रोजेक्ट में भी थे, हम आउट ऑफ द बॉक्स प्रोजेक्ट से बाहर जाके भी हम लोगों ने उनका बहुत सारे हेल्प किए थे, सो दे नो आवर पोटेंशियलिटी। तो इंडस्ट्री नहीं, जानते हैं इनफैक्ट हमें। अगर मैं बात करूं तो जो सेफ्टी वाली बात थी ना, ये हमारे पास ये इंक्वायरी हमारे उन्हीं से कस्टमर है। से ही आई थी कि हमको ऐसा Okay. कुछ आप बना के दोगे क्या, बट बिकॉज वी वर बाउंड बाय अ नॉन कॉम्पीट इन आवर लास्ट कंपनी, हम वो कर नहीं पाए थे। बट ये रिक्वायरमेंट खुद आई थी। इनफैक्ट कल मेरे पास एक और रिक्वायरमेंट आई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है फ्रॉम अ वेरी लार्ज बिल्डर इन साउथ इंडिया, Okay. Okay. and the problem statement is exactly what secure site is doing. ठीक है। Okay, so हाँ, ये मतलब utilize वही basically मार्केट हमारे major, पास है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है, मतलब, और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स मैंने नहीं सुने जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। तो काफी जो मैं एक और चीज है सिमरन, मैं यहाँ पे हम्म। बोलना चाहूंगा, सॉरी टू कट यू, मैं एक और चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा। हमारा एक स्ट्रेटेजी है ना, देखिए ब्रतिन और मैं दोनों काफी हैंड्स ऑन है। ओके, Okay. तो हमारा तो स्ट्रेटेजी है प्रेडिक्ट टेक का कि हम जो भी अभी हायरिंग होगी वो ब्रतिन की टेक में होगी। मैं सेल्स मार्केटिंग कोई भी हायरिंग नहीं कर रहा हूँ। ओके, बिकॉज पहले 2 साल तक हाँ मेरे ऊपर वो एक एडिशनल प्रेशर होगा, बट आई एम विलिंग टू टेक दैट प्रेशर, बिकॉज मुझे जाके कस्टमर को मिलना है, कस्टमर के सामने टाइम स्पेंड करना है, इस प्रोडक्ट को डिप्लॉय करके ट्रैक्शन रेवेन्यू ला के स्टिकीनेस लाना है। बिकॉज अगर मैं 2 साल तक ये एफर्ट डालता हूं, तो जब 2 साल के बाद मैं मेरी टीम हायर करने का सोचूंगा, टीम ऑफ SDRs और whoever it is, तब मेरे पास उनको कोच करने के लिए करेक्ट डेटा होगा, मैं उनको हाफ बेक डेटा नहीं दूंगा। ओके। ओके। हाँ, मैं वही जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अभी कि मार्केट है जो जिसको हम कैप्चर कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये एक्चुअल में है जो हम टारगेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स बहुत कम है, और अगर कोई है भी तो वो अनऑर्गेनाइज्ड इक्का दुक्का वो होंगे। सो ठीक है गाइस, इट वाज ग्रेट हैविंग कन्वर्सेशन विद यू यार। वी होप थैंक यू कि सो मच। जिस वे में हम टारगेट कर रहे थैंक हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, both of you guys can solve the problem in a right way. Thank you guys for your time. So we'll be connecting soon. We'll be connecting soon for the funding part as well. So stay connected. Sure. Yeah. Thank you so much. Nice Okay. talking to you. थैंक यू। Have a good Thank you. evening. एंड Bye-bye. हम हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है बिल्ड ऑप्टिमा, उनके बारे में भी हम लोग कभी डिस्कस करेंगे, जो रेवोल्यूशन लाएगा इंडस्ट्री में। वो अभी R&D एफर्ट के अंदर है। दैट विल बी लाइक वन ऑफ ए काइंड। वो तो मतलब रेवोल्यूशनरी है। कंपनी के फाइनेंशियल्स और पिच में भी दोनों प्रोडक्ट्स है। आज ऑब्वियसली हम दोनों लोग ज्यादा products है। सिक्योर वो साइट तो के बारे में deep बात dive क्योंकि किया, इसका बिकॉज़ दैट इज डीप डाइव ये कन्वर्सेशन प्रोडक्ट पॉडकास्ट शेयर करेंगे उसमें। तो उसमें करेंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं। श्योर। Great. Thank you guys for your Sure. time. Lovely connecting with you. Thank Thank you so much. Take care. Have a good Bye-bye. Thank you. evening. Bye. थैंक यू। गुड इवनिंग। बाय। Guys, if you feel this information is something useful and it may be insightful for you or for someone else, feel free to share it and stay tuned for more episodes. Thank you.